which is a part of something called as statistics. Statistics is an important subject. It's a part of maths. In 9th standard, lesson 14 is statistics. In 10th standard also, lesson 14 is statistics. And if you happen to take commerce in future, statistics will become an entire textbook. ये पूरा एक subject बन जाएगा. So do it carefully. 8th में फ़िलहाल easy है. 9th and 10th will be difficult. Pictograph you must have done in 7th standard because वो 8th में नहीं है. Pictograph is just a way of using pictures to show information. For example, one car here is telling us information that it means 100 cars. So one symbol of a car stands for 100 cars. तो जुलाई में कितनी कार्स बनाई? 1, 2 and this is half, 250 cars, because half means half of 100 because one car is 100. 3 cars 300, 4 cars 400, and based on that pictograph some questions will be asked. How many cars were produced in July? This is July. 250 cars were produced. In which month maximum number of cars were produced? Maximum number is 400, therefore in September maximum cars were produced. This is called a pictograph, which gives you information. After pictograph there is something called as bar graph. ये 8th standard में मेन आएगा, ड्रॉ करना पड़ेगा ग्राफ पेपर पे. A bar graph is display of information using bars. ये जो rectangular tower है, जो लंबी लंबी बिल्डिंग होती है वैसा, these are called bars. Start writing important qualities of a bar graph. Write down lesson 5 data handling. First topic bar graph. Things which you should know about a bar graph. Number 1, uniform width. Bar graph में the width is always uniform, मतलब જે પહોળાઈ છે એ સેમ હોય બધામાં. Right, width can be 1 centimeter or 2 centimeter और 3 centimeter. width कुछ भी रख सकते हो लेकिन width सेम होनी चाहिए. height being proportional to respective values. लिखो height depends on data. डेटा का नंबर बड़ा है तो हाइट ज़्यादा, डेटा का नंबर छोटा है तो हाइट कम. और एक लिखो कैपिटल में गैप्स आर कंपल्सरी. देखो हर एक टावर के बीच में एक गैप है और ये गैप ज़रूरी है. दैट्स कॉल्ड अ बार ग्राफ. Bar heights give the quantity for each category and bars are of equal width with equal gaps in between. Let's try to understand what this bar graph is telling us. X-axis tells you which academic year. 2003, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8. तुम लोग सब 8th स्टैंडर्ड में हो. फ़िलहाल 2020 है लेकिन फाइनल एग्ज़ाम 2021 में आएगी, तो यू आर अ पार्ट ऑफ 2020-2021 बैच. वैसे ये 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8 बैच है. एंड वाई एक्सिस इज टेलिंग यू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 8th स्टैंडर्ड. तो हर साल पॉपुलेशन बढ़ता है इसलिए 8th स्टैंडर्ड के बच्चे बढ़ जाते हैं. 2003-4 में they were 100 kids. 2004-5 में they became 200
then they became 250, then they became 300, and then they became 350. So this is how you read, by drawing lines, keeping a scale or whatever, but you have to read from here that what was the number in which year. That's a bar graph. इसका बार ग्राफ ड्रॉ करना है तो बहुत ही सिंपल होगा. Y axis is the standing axis, sleeping axis is the x axis. Arrows is a must. The point where two axes meets is called origin, O. जुलाई, अगस्त, सितंबर महीने है तो मंथ्स, एंड देन यू हैव टू लीव 1 सेंटीमीटर एंड हाईलाइट 1 सेंटीमीटर, थोड़ा डार्क, वापस लीव 1 सेंटीमीटर, हाईलाइट 1 सेंटीमीटर, लीव 1 सेंटीमीटर, हाईलाइट 1 सेंटीमीटर. So what you have done is basically highlighted the base of 3 towers. Call them July, अगस्त, सितंबर. अब जुलाई, अगस्त, सितंबर पे टावर्स बनेंगे एंड द टावर की वैल्यू है 250, 300, 400. सो यू हैव टू डिसाइड व्हाट डू यू वांट टू राइट. 1 सेंटीमीटर के गैप्स तो रेडी है, ग्राफ पेपर है तुम्हारे पास, इसलिए मैं 1 2 3 4 5 करूँगा तो 400 तक नहीं पहुँच सकता. 2 4 6 8 10 तो भी नहीं. 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400 पहुंच जाऊंगा. तो पूरा ग्राफ यूज़ होना चाहिए, वैसी वैल्यूज़ चूज़ करनी है. 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400. X and Y axis are ready. Now you have to finish drawing the bar graph, which is very easy. July 250, 250 यहाँ पे, तो ये उसकी हाइट फिक्स हो गई. So you have to join and create a bar. August 300, 300 is here. You have to join, and September 400, this is called bar graph. Gaps is a must. Tower height is decided by the respective numbers. There is something on x axis और यहाँ पे लिखना ज़रूरी है. क्या लिखोगे? What is y axis? Y axis is number of cars produced. जुलाई में कितनी कार प्रोड्यूस की, अगस्त में कितनी और सितंबर में कितनी. Let's try to answer these questions by looking at this graph. First question, what is the information given by the graph? You have to write this in your own words. What is the information given by the graph? The graph tells us that in which academic year how many 8th standard students were there. Second question, in which year is increase in number of students maximum? In which year is the increase in number of students maximum? पहले इंक्रीज फाइंड करना पड़ेगा. इंक्रीज कैसे फाइंड करते हैं? देखो 2003 और 4 में 100 थे, फिर 200 हो गए,
फिर 250, 300, 350। हर बार 50 50 50 का ग्रोथ है, बट यहाँ पे 100 का ग्रोथ है। सो इन विच ईयर इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैक्सिमम? 2004 में द इंक्रीज इज 200 नहीं, 100 का 200 मतलब 100, विच इज मैक्सिमम इंक्रीज। 100 जन बढ़ गए, उसके बाद 50 50 50 50 बढ़ते रहे। इन विच ईयर इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैक्सिमम? Maximum number of students are 350 in the year 2007 and 8. And state true or false. The number of students during 2005 and 6 is twice that of 3 and 4. 2005 और 6 में कितने बच्चे हैं? 250। 2003 और 4 में 100। Is it twice? Is it double? No. Therefore answer is false. It's not twice. There is also something known as double bar graph. So, double bar graph में दो बार होते हैं एक साथ और दो अलग अलग इंफॉर्मेशन मिलती है साथ में। For example, x axis is telling us the subject. Maths, Science, SS, English and Hindi. Y-axis is telling us the marks obtained by a particular student. But Maths में दो अलग मार्क्स कैसे? Because white वाले मार्क्स 2005-6 के एग्ज़ाम के हैं और ग्रे वाले 2006 और 7 के एग्ज़ाम के। तो दो अलग अलग साल की एग्ज़ाम है। This person in Maths has shown improvement बिकॉज पहले इसके 30 मार्क्स थे। कैसे पता चला 30? यू हैव टू ड्रॉ डॉटेड लाइन हियर 30, लेकिन अब मैथ्स में 60 हो गए। सो देयर इज ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट। सिमिलरली दिस इज 50 विच बिकेम 55। 55 कैसे पता चला? जब तुम लाइन ड्रॉ करोगे तो वो कहाँ स्टॉप होती है वो चेक करना है। ये वाली लाइन स्ट्रेट ड्रॉ करोगे तो 50, और ये 50 और 60 के बीच में टच होती है, देयरफॉर 55। साइंस में इट यूज्ड टू बी 45। Let's try to solve the questions. What is the information given by the double bar graph? The double bar graph tells us that in 5 subjects, how many marks were obtained in 2005-6 and 2006-7. Second question, in which subject has the performance improved the most? मैक्सिमम इम्प्रूवमेंट कौन से सब्जेक्ट में देखा गया है? इम्प्रूवमेंट मतलब मार्क्स का बढ़ना। हिंदी में मार्क्स सेम है, इंग्लिश में कम हो गए, साइंस में थोड़े से बढ़े, एसएस में थोड़े से बढ़े, बट मैथ्स हैज शोन ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट। सो विच सब्जेक्ट हैज परफॉर्मेंस इम्प्रूव्ड द मोस्ट? आंसर इज मैथ्स। इन विच सब्जेक्ट परफॉर्मेंस हैज डिटीरियोरेटेड मतलब परफॉर्मेंस कम हो गया है, खराब हुआ परफॉर्मेंस मतलब ग्राफ का नीचे आना, इंग्लिश। एंड इन विच सब्जेक्ट परफॉर्मेंस इज एट पार मतलब नो चेंज, हिंदी में नो चेंज। दैट्स हाउ यू रीड अ ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस. दिस इज कॉल्ड अ डबल बार ग्राफ. Now this table is called a frequency distribution table. Frequency distribution table. If you are making your own notes, it's a good thing. If you are not writing down these small things,
तो पढ़ाई बराबर नहीं होगी। तो लिखो टेबल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है वो लिखो। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू काउंट, it's a number. For example, look at this table. Subject art, art के सामने number of students 7. इसका मतलब है that frequency of students taking arts is 7. Maths 5, science 6 और English 4. तो कितने स्टूडेंट्स ने कौन सा सब्जेक्ट चूज किया उसका ये इंफॉर्मेशन है। एंड फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। फ्रीक्वेंसी गिव्स द नंबर ऑफ टाइम्स दैट अ पर्टिकुलर एंट्री अकर्स। नंबर ऑफ टाइम्स मतलब कितनी बार या कितने स्टूडेंट्स ने आर्ट चूज किया। 7 स्टूडेंट ने। फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक इंग्लिश is 4. Frequency of students who like maths is 5. And such table are called frequency distribution tables. Frequency मतलब count. और ये frequency count करते हैं tally marks के थ्रू। Imagine करो there are 22 students in a classroom. Literally imagine 22 बच्चे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22. 22 students are sitting in a class and every student is asked one question, which is your favorite subject? किसी ने कहा आर्ट मैथ्स, आर्ट साइंस, साइंस इंग्लिश, आर्ट मैथ्स, मैथ्स साइंस इंग्लिश, इंग्लिश साइंस मैथ्स आर्ट, आर्ट साइंस इंग्लिश, इंग्लिश मैथ्स साइंस और आर्ट। हर एक की अपनी अपनी चॉइस है। चारों में से एक एक सब्जेक्ट सबने लिख लिया और ये इंफॉर्मेशन ऑफ रियल लाइफ गेट्स कन्वर्टेड टू दिस काइंड ऑफ टेबल थ्रू समथिंग नोन एज टैली मार्क्स। टैली मार्क्स कैसे होता है? आर्ट्स, मैथ्स, साइंस, इंग्लिश एंड देन यू हैव टू डू दिस। हर एक की बेंच पे जाके उसको पूछो व्हाट वाज योर चॉइस? आर्ट्स 1, maths 1, arts 2, science 1 2, English 1 2 3, maths 1 2 3 4। टैली मार्क्स में 5 के आगे जाना अलाउड नहीं है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 करके गिनते जाने का। This is called a frequency distribution table. But there are some names which you have to understand. Write down frequency distribution table. The first thing you have to write down, frequency distribution table. Second, frequency. Third, क्लास। अब ये क्लास क्या होता है? इट्स द कैटेगरी। ये जो सब्जेक्ट है, कौन सा सब्जेक्ट और कौन से सब्जेक्ट की फ्रीक्वेंसी क्या है, दिस इज कॉल्ड क्लास। फोर्थ लिखो, क्लास इज इक्वल टू अनग्रुप्ड।
ये जो क्लास है वो अनग्रुप्ड है. आर्ट इज नॉट अ ग्रुप, इट्स अ सिंगल सब्जेक्ट. मैथ्स इज अ सिंगल सब्जेक्ट. इंग्लिश एंड साइंस इज अ सिंगल सब्जेक्ट. बट कभी कभी द क्लास विल बी ग्रुप्ड. जैसे ये ग्रुप्स 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60. And these groups are called class. This is called tally marks and this is called frequency. और ये है ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. पहले वाला जो था वो था अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. सो राइट नंबर 5, क्लास grouped. Example 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, etc. So what can this be? ये टेबल कुछ भी हो सकता है. मैं एक फेक एग्जाम्पल क्रिएट कर रहा हूँ कि marks of students, marks of 60 students in maths, जो पेपर था 60 में से. तो 60 मार्क्स का पेपर था, 60 स्टूडेंट्स है, किसको कितने मार्क्स आए उसका ये इंफॉर्मेशन. एंड हाउ टू अंडरस्टैंड दिस इंफॉर्मेशन. ये जो क्लास है ये बेसिकली मार्क्स बन जाते हैं. क्लास के सबसे वीक स्टूडेंट्स को 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आ सकता है. और क्लास के सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट को 50, 55, 58, 59 या 60 भी आ सकता है. सो दिस इज द रेंज ऑफ मार्क्स विच इज कॉल्ड क्लास और ग्रुप्स. अब हर एक को पूछो कितने मार्क्स आए. किसी ने बोला 13, तो उसको हम कहाँ रखेंगे, यहाँ 10 to 20 में. किसी ने बोला 33, तो वो यहाँ आएगा. 45 यहाँ आएगा. 56 वो यहाँ आएगा. करते 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 टैली मार्क्स बन गए और पता चला दैट 0 से 10 के बीच में 2 जन के मार्क्स हैं. 10 to 20 में 10 जन है जिसके मार्क्स हैं. एंड टॉपर्स ऑफ द क्लास इज जस्ट 1, सिर्फ एक जन को 50 और 60 के बीच में है, बाकी सारे उससे कम है. सो अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी गैदर्ड फ्रॉम दिस टेबल विच इज कॉल्ड ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी distribution table. This is the comparison of ungrouped frequency distribution table, group frequency distribution table. अनग्रुप में यहाँ पे सिंगल कैटेगरी होती है या सिंगल मार्क्स होता है. फॉर एग्जाम्पल 5, 10, 15, 20 स्टूडेंट्स 3, 7, 4, 2. तो 5 मार्क्स वाले कितने स्टूडेंट्स, 10 मार्क्स वाले, 15 मार्क्स वाले और 20 मार्क वाले 2 स्टूडेंट. दिस इज स्टिल अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बिकॉज ये सिंगल नंबर्स है. बट ग्रुप होता तो 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20. This would have become group frequency distribution table. The number of students would have changed. This is another group frequency distribution table. Write down a new topic, grouped frequency distribution table. उसके नीचे लिखो क्लास इंटरवल, एरो, एग्जाम्पल 0 to 10,
कॉमा 10 to 20, कॉमा 50 to 100, कॉमा 2000 to 3000, कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द सम एक्सेट्रा. दिस इज कॉल्ड क्लास इंटरवल और क्लास. देखो यहाँ पे लिखा है क्लास इंटरवल. फिर लिखो साइज ऑफ क्लास. एरो 0 to 10 के नीचे 10, 10 to 20 के नीचे 10, 50 to 1000 नहीं, 50 to 100 कर दो. 50, 2000 to 3000 के नीचे 1000. What is this? Size of the class. Size मतलब गैप. 0 और 10 के बीच में 10 का गैप है. 50 to 100 के बीच में 50 का गैप है. That is called size of the class interval. फिर उसके नीचे लिखो upper limit of class. Sorry about my handwriting, I am not able to write properly. Lower limit of class. हर एक क्लास की एक अपर लिमिट और एक लोअर लिमिट होती है. हमने 4 क्लास लिखे हैं एग्जाम्पल में. 0 to 10, 10 to 20, 50 to 100 and 2000 to 3000. हर एक की अपर लिमिट मतलब बड़ा नंबर 10, 20, 100, 3000. एंड लोअर लिमिट मतलब नीचे का नंबर, कम वाला नंबर. दिस इज ऑल वॉट यू आर लर्निंग इन स्टैटिस्टिक्स. और ये 9th और 10th में बहुत काम आएगा बिकॉज 9th 10th स्टैटिस्टिक्स में टेबल ही टेबल है. सो what is a class interval, what is size of the class, upper limit and lower limit, इतना information पता होना चाहिए. Question number 1, what is size of the class intervals? किसी भी दो नंबर को माइनस करो तो साइज मिल जाएगी. 100 और 125 में 125 माइनस 100, 25. 150 minus 125, 175 minus 150. The size of the class is 25. Second question, which class has highest frequency? Frequency मतलब number highest 140 है. Answer is this 200 to 225 has highest frequency. Which class has lowest frequency? लोएस्ट फ्रीक्वेंसी 20 है. आंसर 300 to 325 is lowest frequency. What is the upper limit of class interval? 250 to 275. तो 250 to 275 का अपर लिमिट है 275. एंड विच टू क्लासेस हैव सेम फ्रीक्वेंसी? ढूंढ लो सेम फ्रीक्वेंसी वाले दो क्लासेस कौन से है. $55, $55. Answer is 150, 175, 225, 250. Construct frequency distribution table for data. Pause the video and start writing this question. Question copy कर लो या फिर सामने रखना. I am going to show you how to construct a table, a group frequency distribution table. For this example, grouped frequency distribution table.
always the class will come first. Tally frequency. Class they have given us 30 to 35, 35 to 40 और आगे के खुद बनाने हैं 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50. कब तक जाना पड़ेगा? जब तक सबसे बड़ा नंबर फिट ना हो जाए. सबसे बड़ा नंबर 60 है, 65 है, मतलब थोड़ा और आगे जाना पड़ेगा. सेवेंटी तक. एक दो और लिख दिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. नाउ यू हैव टू स्टार्ट पुटिंग टैली मार्क्स. ध्यान से देखना कैसे. आई होप यू हैव कॉपीड द क्वेश्चन. नाउ कॉपी द टेबल. और मैं सारे नहीं करने वाला हूँ, मैं थोड़े करूँगा, बाकी के तुम्हें खुद करने हैं. 40 को कट करो. यहाँ पे तो 2 40 है. दिस 40 विल बी इंक्लूडेड इन 35 to 40 और 40 to 45. जो बड़ा वाला ग्रुप है उसमें लेने का. 40, 38, 35 to 40 के बीच में. 33, 30 to 35 के बीच में. 48, 45 to 50 के बीच में. 60, अब 60 भी 2 बार है तो बड़े वाले ग्रुप में 60 आएगा. ये करते जाओ. एंड आफ्टर फिनिशिंग, मैं ऐसे रैंडम एग्जांपल दे रहा हूँ, कुछ ऐसा आया. बाय द वे 1 2 3 4 के बाद 5 ऐसे होता है. 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. एंड आफ्टर यू फिनिश, you have to count and write the number here. 5 में बे 7, ये है 5, ये है 2, ये है 1, ये है 15, ये है 2, और ये है 5 plus 1 6. So make your own table, make the correct table and then verify the answer which is there on the next slide. Two, 10, 21, 19, 7 and 1. Is it right? No. No. इसका करेक्ट आंसर टेक्स्ट बुक में दिया ही नहीं है. बट यू गॉट एन आइडिया हाउ टू सॉल्व इट. टू मेक ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. नाम याद रखना, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. In every group frequency distribution table, frequency is on the right side, class is on the left side. Every class interval has a lower limit and it has a upper limit. अब ये बार ग्राफ जैसा लग रहा है, बट ये बार ग्राफ है नहीं. I had made you write down बार ग्राफ में गैप्स होने चाहिए. यहाँ पे गैप्स नहीं है. एंड इफ देर आर नो गैप्स, द ग्राफ विच यू ड्रॉ इज कॉल्ड हिस्टोग्राम. एंड हाउ टू ड्रॉ हिस्टोग्राम, आई विल शो यू. इट्स वेरी इजी. ड्रॉ एन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एरोज, class is always on the x-axis, frequency is always on the y-axis. Class interval 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 60 तक है, तो ये 0 है. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70.
फ्रीक्वेंसी 2, 10, 21, 19, 7 और 1, तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी देखने की वो फिट होनी चाहिए. यू हैव टू डिसाइड योर नंबर्स इन सच अ वे दैट द बिगेस्ट फ्रीक्वेंसी फिट्स 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. ग्राफ पूरा यूज़ होना चाहिए और हाईएस्ट नंबर 21 फिट होना चाहिए. नाउ comes the phase where you start drawing. 0 to 10 का 2, ये रहा 0 to 10, उसका टावर जिसका हाइट है 2. 10 to 20 का 10, ये है 10 to 20, 10. 20 to 30, 21. This is height 21, 20 to 30. 30 to 40 का 19. 40 to 50 का 7. 50 to 60 का 1. This what you have drawn without gaps is called histogram. So histogram is just like a bar graph, but it does not have a gap, and it is drawn from a grouped frequency distribution table. This is a histogram. Do you see a crooked line here? This crooked line, zigzag line, is called a kink. किंक का मतलब ये है कि जब ग्राफ ड्रॉ कर रहे थे, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वगैरह, the data did not start from 0. The data started from 125. तो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 130 के बाद तो ग्राफ पेपर ही ख़त्म हो गया. एंड यू कैनॉट अफोर्ड के 130 के बाद ग्राफ पेपर ख़त्म हो जाए, क्योंकि डेटा है, इंफॉर्मेशन इज देयर. तो तुमने क्या सोचा? 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200 तो चलेगा. हाँ, बट इंस्टेड what you do is you write 125 up to 160 and draw a kink. Kink का मतलब ये है that बीच में और नंबर्स है, but because they are not useful उसको हमने हाइड कर दिया है. बिकॉज ग्राफ पेपर का रूल है, if one jump takes you to 1, second jump should take you to 2. If one jump takes you to 125, तो नेक्स्ट जंप में और 125 ऐड होने चाहिए 250, फिर एक और 125 ऐड होंगे 375. बट क्या ऐसा हो रहा है? नहीं, ऐड तो 5 का है, +5 +5 +5, तो 0 to 125 का इतना बड़ा जंप हो ही नहीं सकता. बट हो सकता है. स्टैटिस्टिक्स में यू कैन यूज़ किंक एंड शो दैट बीच का ग्राफ हमने गायब कर दिया है बिकॉज उसकी ज़रूरत नहीं थी. वन मोर टाइम आई विल एक्सप्लेन यू द किंक बिजनेस. से दिस इज माई मैक्सिमम स्पेस आई हैव इन द ग्राफ and the class which I have to show is 40 to 45. 540
to 550, 550 to 560, 560 to 570, ये मुझे दिखाना। अब what do I do is I straight away write 540, 550, 560, 570, frequency 3, 2, 1, तो 540 to 550 का टावर 3 का, फिर 2 का और फिर 1 का। It's okay, but I have to draw a kink here. ये किंक ज़रूरी है बिकॉज इन रियल लाइफ अगर ये जंप 0 to 540 है तो दूसरा सेम जंप पे 1080 होना चाहिए, जो नहीं हो रहा है। Therefore kink is used saying the extra part of the graph is hidden। वैसे तो ग्राफ 10-10 का जंप ले रहा है, बट स्टार्टिंग में नहीं लेता क्योंकि किंक है। लिखो एक्सरसाइज 5.1, you have to solve all the sums in homework. For which of these would you use a histogram to show the data? Number of letters of different areas in a post bag, बार ग्राफ यूज होगा। हाइट ऑफ कॉम्पिटिटर्स इन एथलेटिक मीट, बार ग्राफ। नंबर ऑफ कैसेट प्रोड्यूस्ड बाय 5 कंपनीज, बार ग्राफ। नंबर ऑफ पैसेंजर बोर्डिंग ट्रेन फ्रॉम 7 AM to 7 PM, हिस्टोग्राम। रीज़न ये है दैट हिस्टोग्राम का जो क्लास होता है, क्लास मतलब एक्स एक्सिस, that has to be in range 7 to 8 AM, 8 to 9 AM, 9 to 10 AM, ऐसा होना चाहिए। एक्स एक्सिस शुड बी अ रेंज, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होना चाहिए। जबकि ए वाले ग्राफ का एक्स एक्सिस क्या होगा? डिफरेंट एरियाज, वस्त्रापुर, मणिनगर, कालूपुर, अलग अलग एरिया में कितने लेटर्स हैं, तो ये तो ऐसा ग्रुप नहीं है। हाइट ऑफ कॉम्पिटिटर्स इन एथलेटिक्स मीट, हाइट ऑफ कॉम्पिटिटर में कोई लंबा होगा, कोई मीडियम, कोई छोटा, लेकिन नीचे नाम लिखेंगे राकेश, रमेश एंड रमा। दिस इज नॉट क्वांटिटेटिव डेटा, दिस इज नॉट नंबर्स। एंड नंबर ऑफ कैसेट्स प्रोड्यूस्ड बाय 5 कंपनीज, तो 5 कंपनी में 5 कंपनी का नाम आएगा। टी सीरीज, सारेगामा, एक्स वाई एंड जेड, कहीं पे भी नंबर्स नहीं आते। दैट्स वाई इन सब का बार ग्राफ बनेगा। हिस्टोग्राम बनाने के लिए देयर हैज़ टू बी ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विच इज़ पॉसिबल इन द फ्लाइट्स लीविंग बिटवीन 7 AM and 7 PM. Shoppers who come to department store, man, woman, boy, girl, make frequency distribution table. Make frequency distribution table using tally marks. पहला कॉलम हमेशा होता है क्लास। क्लास में तुम लिख सकते हो टाइप, दूसरा होता है टैली और तीसरा फ्रीक्वेंसी। The type is boy, girl, man, women. Boy, girl, man, women. Women 1, women 1, women 1, girl 1। बस ये गिनते जाना है। बॉय 1, तो ये लॉन्ग कट हो गया। मैं शॉर्टकट बताता हूँ, यहाँ तक ख़त्म हो गया। आप शॉर्टकट देखो, बॉय 1, बॉय 2, 3,
4, 1 2 3 4, 5 बॉयज़ है. विमेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. विमेन 11 है, बट 11 में से 2 यहाँ यूज़ कर लेते हैं, तो बचे 9. 1 2 3 4 5, 1 2 3 4. और भी विमेन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. और 13 में से एक गया तो 12. Therefore total number of women is 27. वैसे मैन गिनो, गर्ल बॉय गिनो, और उसके बाद उसका बार ग्राफ ड्रॉ करना है. आई विल गिव यू बेसिक ऑफ बार ग्राफ. यू हैव टू ड्रॉ इट ऑन अ ग्राफ पेपर. 1 रुपये का एक ग्राफ पेपर मिलता है. एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, बॉय गर्ल मैन विमेन. तो 1 सेंटीमीटर का गैप छोड़ के बॉय, फिर गैप गर्ल, फिर गैप मैन, फिर गैप विमेन. बॉय गर्ल मैन विमेन. और ये एक्सेस डिसाइड करते समय जो हाईएस्ट नंबर है उसको ध्यान में रखना. हाईएस्ट नंबर 27 विमेन ही होगा. सो whatever you do, you can write 1 2 3 4 5 6, you can write 2 4 6 8 10, you can write 5 10 15 20, but whatever you write, make sure सबसे बड़ा नंबर समाना चाहिए. When you finish making the table for girls, boys, men and women, your data should have the following numbers. ये आगे पीछे तो चलेगा. मैन 15 होने चाहिए, विमेन 28, बॉय 5, गर्ल 12, एंड द टोटल हैज़ टू बी 60. और यही चीज़ का बार ग्राफ तुम्हारे सामने है. मैन विमेन बॉय गर्ल. इवन इफ बॉय गर्ल इज इन फ्रंट एंड मैन विमेन पीछे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. बट फ़र्क पड़ेगा इफ़ यू डोंट राइट वॉट इज़ ऑन द एक्स एक्सिस. यू हैव टू राइट हियर शॉपर, एंड वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ पीपल, एंड द स्केल. स्केल मतलब ग्राफ पेपर का 1 सेंटीमीटर मतलब 5 लोग. तो 1 unit length is equal to 5 people. 2 units is 10, 15, 20 and so on. So this is how your graph should look. You can draw in your notebook also, but better if you draw it on a graph paper. और ग्राफ पेपर के 2 टुकड़े कर दो, आधे पेज में भी आ जाएगा. थर्ड क्वेश्चन इज वीकली वेजेस. वीकली वेजेस એટલે પગાર, પૈસા મળે, of 30 workers in the factory. We have to make a frequency distribution table. The first is called class 800 to 810, 808 to 820. और ऐसे 10-10 का जंप करके कंटिन्यू करना है. कब तक लिखोगे? जब तक सबसे बड़ा नंबर समान आ जाए. इसके अंदर समाना चाहिए, मतलब इट शुड बी फिट इनसाइड. आई सी 855. ओह 898. है कोई इससे बड़ा? नहीं. सो 898 सबसे बड़ा है. यू हैव टू कंटिन्यू.
That's your table. After writing class, you have to write tally marks. जगह छोड़नी है tally marks के लिए. And frequency. And then start one by one, very carefully, very slowly. 830 पे कट किया. 830 यहाँ ऊपर आएगा कि नीचे? नीचे. 835, 890, 890 यहाँ पे आएगा. ओ नहीं, 890, 880, 890, 890 to 900. Here 890 will come. जब टाई हो 890 890 तो जो नीचे है उसमें आएगा. बस ये करते जाना है, सारे नंबर्स कट करके टेबल फिल कर देना है. पॉज द वीडियो, डू इट योर सेल्फ सो दैट यू अंडरस्टैंड वेदर इट्स ईजी और नॉट. आगे अब आंसर आएगा, तो आगे देखने से पहले ये सम खत्म करो. दिस इज द आंसर. एक भी नंबर इधर उधर नहीं होना चाहिए. सो 3219513114. टीचर ये चेक करेगी. These numbers will be checked by the teacher and total has to be written as 30. तो ये हो गया 30 वर्कर्स का पगार. क्वेश्चन 4 में क्वेश्चन 3 का हिस्टोग्राम बनाना है. हिस्टोग्राम में एक्स और वाई एक्सिस होता है. द वेजेस और द क्लास विल कम ऑन एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस में 10-10 का जंप है. 8 से 810, 810 से 820, 820 से 830. तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये तो हमेशा 0 है. आई लीव 1 or 2 सेंटीमीटर एंड राइट 800, 810, 820, 830, 840, 850, 860, 70, 880, 890, 900. And I have to draw a kink here. Because kink नहीं ड्रॉ किया तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि 0 to 800 के बाद 810 नहीं आता. This is the big jump of 800. Then there are small jumps of 10, 10, 10, 10. Therefore, you need a kink to tell the world के आगे के numbers useless थे, उनको hide कर दिया है. y axis भी डिसाइड करना पड़ेगा. y axis में सबसे बड़ा नंबर फिट होना चाहिए 9. तो 2-2 सेंटीमीटर पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसा कुछ कर दो. And then you have to start drawing the histogram. 800 to 810 का 3, 810 to 820 का 2, 820 to 830 का 1. ऐसे करके finish the graph, and the graph should look something like this. X axis should be properly labeled as wages. Y axis should be labeled as number of people, and this is the graph which is ready. कुछ क्वेश्चन आंसर्स पूछे हैं. The first question asked is, which group has maximum number of workers? सबसे ज़्यादा वर्कर्स कौन से ग्रुप में है? ये रहे सबसे ज़्यादा वर्कर्स,
it is among 830 to 840 because it's the highest tower. Second question, how many workers on 850 and more? 850 और 850 से ज़्यादा कौन ऑन करता है? दिस इज 850. People earning 850 are in this group. So you have to count 1, 2, 3, 4 and 5. पीछे के 5 ग्रुप्स को गिनती करोगे तो 850 और उससे ज़्यादा कमाने वाले लोगों का नंबर मिल जाएगा. फ़ोन नंबर नहीं रे, काउंट नंबर मतलब कितने. So worker earning 850 and more means 850 to 860, 860 to 870, 870 to 880, 880 to 890 and 890 to 100. 13114. टेबल देखो तो इजी हो जाएगा. 850 और 850 से ज़्यादा 13114. 13114. 10 workers. And the third and the last question is, how many workers earn less than 850? लेस देन 850 मतलब ये पॉइंट के नीचे के सारे, मतलब पहला ग्रुप, दूसरा, तीसरा, चौथा और 840 टू 850 भी आ जाएगा. 32195, टोटल 20 वर्कर्स. You can see from your own table. 32195, total 20 workers on below 850. Last question में ग्राफ दिया हुआ है, you have to just answer the questions. This is the graph given hours of TV watched per day and number of students. मतलब कितने स्टूडेंट्स कितने घंटे टीवी देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, how many hours did maximum number of students watch TV? मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब 32 स्टूडेंट्स, और ये 32 स्टूडेंट्स ने हाउ मेनी आवर्स डिड दे वॉच टीवी पूछा है. दे वॉच बिटवीन 4 to 5 hours. दैट्स योर फर्स्ट आंसर. सबसे ज़्यादा बच्चे 4 से 5 घंटे टीवी देखते हैं. सेकेंड, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वॉच टीवी फॉर लेस देन 4 hours? 4 घंटे से कम. तो 4 hours ये है. लेस देन 4 hours इज 1, 2, 3, मतलब 22 प्लस 8 प्लस 4. 4 घंटे से कम टीवी देखने वाले 22 बच्चे, 8 बच्चे और 4 बच्चे, 34 students. And last question, how many students spend more than 5 hours watching TV? 5 घंटे से ज़्यादा मतलब 8 plus 6, 14 students watch more than 5 hours. That is the end of this session. Do all the textbook sums as homework, one time each.